you must have heard कि हमारा देश अब कैपिटल ऑफ डायबिटीज जाना जाता है. So because of the plastic that we use, it's because of the processed food that we have been eating now, it's because of the packaged food that we've been eating now. एग क्वालिटी की वजह से शायद आप कंसेप्शन में थोड़ा डिले हो सकता है या फिर आप मिस हो सकते हैं, अबॉर्शंस हो सकते हैं. We should not mix these two terms of being a transgender and having a choice to like the same gender. They're two different entities. कोई भी हार्मोनल या कोई भी थेरेपी के there are some side effects. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या बख्शी और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस. और आज हम बात करने जा रहे हैं हार्मोनल हेल्थ पे. तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वेरी फेमस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. सो प्लीज वेलकम डॉक्टर शर्वरी दुआ. डॉक्टर वेरी मच वेलकम. सो डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क, लाइक आप अपने रेगुलर लाइफ में सबसे ज्यादा किस तरीके के पेशेंट से डील करते हैं? आई मीन पेशेंट आपके पास रेगुलरली कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? Okay. First of all, thank you very much, Aishwarya, for introducing me and getting me into this show. I think the topic that you have touched today about endocrine disorders बहुत ज़रूरी है सबके लिए, because endocrine related जो problems थे जिसके बारे में ज़्यादा awareness नहीं होती थी पहले लोगों में, अब वो बहुत हद तक बढ़ गई है. A lot of people have been now suffering from diabetes, like you must have heard कि हमारा देश अब capital of diabetes जाना जाता है. So diabetes first and foremost is the commonest problem that we face now as endocrinologists, followed by PCOD, followed by thyroid disorders and obesity, of course, because it goes hand in hand with diabetes and thyroid. So बहुत commonly सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो या तो thyroid या diabetes या obesity related patients हैं. But like I said, as awareness is increasing, we're also finding out about various other hormonal problems that now people have started to face. ओके, तो टॉकिंग अबाउट डायबिटीज नाउ, सो एक पेशेंट को, लाइक एक पर्सन को कैसे पता चलता है कि वो डायबिटिक होने वाला है या वो प्री डायबिटिक हो चुका है? बिकॉज अर्ली सिम्टम्स तो कभी पता चल नहीं पाते. जैसे एक एज की बात अलग कही जाए, 40 की बात अलग है, लेकिन अभी तो अर्ली 30s वाले लोग भी डायबिटिक होते जा रहे हैं. तो ये कैसे पता चलता है? Right. In fact, touching on that topic, I would like to tell you that it's not just early 30s, even with early 20s or teenage, because of obesity, we are seeing some beginning of insulin resistance and hence early diabetes. Keeping that aside, lifestyle changes इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से डायबिटीज जो है वो बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है. But like coming to your question कि अब हम कैसे जान सकते हैं if we are diabetic or not. So first and foremost, बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के जो कि नॉट नेसेसरीली सारे पेशेंट्स में या इंडिविजुअल्स में हम देख सकते हैं. बट जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वेट लॉस होना, अनइंटेंशनल वेट लॉस जिसको हम बोलते हैं, माने आप ट्राई नहीं कर रहे डिस्पाइट दैट यू आर स्टिल लूजिंग वेट, और यू आर गेटिंग रिकरेंट इन्फेक्शंस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है. ये बहुत वेक सिम्टम्स है जो शायद किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं. बट स्पेशली फॉर पीपल हु हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, जिसकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है या फिर जिनको ऑलरेडी ओबेसिटी या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम रही है टीनेज में, because they have insulin resistance, they're more likely to develop diabetes, and that is why we recommend their testing on a regular basis. Okay, so if अगर उनकी family history है, मगर the person is not suffering from PCOD, okay, still diabetes होने के chances हैं? So genetic factors for type 2 diabetes बहुत strong है. Keeping in mind कि अगर उनकी lifestyle वो बहुत अच्छे से maintain कर रहे हैं, obesity नहीं है, they're eating healthy, they're exercising every day, and there is no other risk factor like addiction, like smoking, alcohol, या फिर sedentary lifestyle नहीं है. Keeping that in mind, on a regular basis, we do not need a checkup, even if there is a strong family history. But yes, if you have a family history, और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की life अब sedentary हो चुकी है, especially after the pandemic. In सबको there is a chance that they would develop diabetes if they do not take care of their health. Okay, like if a teenager is like obese right now, ठीक है, then अगर उससे ऐसा कुछ like symptoms हो रहे हैं urination से related कुछ, तो मतलब उनकी body पे भी ऐसे कुछ changes आते हैं क्या? उन्हें पता चल सकता है? Like I said, recurrent infections एक sign है कि अगर आपको बार बार से urinary symptoms हो रहे हैं तो yes, that is a sign. अगर आपको बार बार skin infections हो रहे हैं, that is also a sign. What kind of skin infections? So skin infections can be in the form of boils, it can be form of folliculitis, या फिर जिसको हम बाल तोड़ कहते हैं very commonly. Such infections are very common with diabetes. ये जो आपने last word use किया, बाल तोड़ जिसे कहते हैं,
ये अगर किसी को हो तो वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि उसे डायबिटीज होने के भी चांसेस। Yes, but like I said, it's not just that. It is associated with other symptoms also. कि उसमें कुछ उनको कुछ और भी symptoms शायद develop हो सकते हैं, like increase in thirst या फिर भूख बढ़ जाना, फिर भी weight कम होना, things like that. So there are other signs that we have to look out for. Diabetes, but recurrent infections definitely require testing. डायबिटीज में वेट गेन हो जाता है, लूज हो जाता है, you mean? In extreme cases, जिसको हम catabolic state बोलते हैं, the scientific term, so उसमें होता ही है because of the insulin resistance that develops in your body and because of the loss of beta cells, your body tends to lose a lot of fluid, in layman's language, if I tell you. And that way, we start losing weight at a later stage of diabetes when it is undetected, undiagnosed. So with really high diabetes, we generally tend to lose the muscle mass and hence we lose weight. And like it's reverse in PCOS, PCOD, because so often girls complain about weight only. Weight gain, yeah. So PCOD basically is also, it begins with a bad lifestyle and then gradually the disease can progress if you still maintain to have genetics space पे matter करता है। PCOD generally जब हम teenage में देखते हैं, जब उसका beginning होता है, and that's when it affects the most. Not necessarily every time there has to be a genetic factor. Mostly we have seen lifestyle being the main problem here. And if not lifestyle, तो फिर puberty से काफी पहले हमें ऐसे changes दिखने लगते हैं that can later also cause hormonal complex syndromes, जिसमें PCOD पार्ट हो सकता है। ये बहुत कॉमन मुझे लगता है 15-20 साल में हुआ है। पहले की लेडीज जो हमारी मदर्स ये सब के तो कंप्लेंट्स कभी रहे नहीं है पीसीओडी के। जो भी आज की जनरेशन की जितनी लड़कियां हैं, मैक्सिमम 90% लड़कियां लाइक पीसीओएस, पीसीओडी से सफर कर रही हैं। एवरीवन इज कंप्लेनिंग कि हमारा वेट पीसीओडी की वजह से बढ़ रहा है। बट कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप वेट लॉस करोगे तभी पीसीओडी भी खत्म होगा। तो ये कैसे हो सकता है? आपका वेट भी बढ़ रहा हो पीसीओडी की वजह से और आप वेट लॉस कैसे करोगे उस कंडीशन में? एक्चुअली to your surprise, आप मानोगे नहीं that a lot of people just think that they have PCOD, but actually diagnostically जब हम इनके हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट करते हैं या फिर उनका अल्ट्रासाउंड देखते हैं, उसमें हमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस दिखता नहीं है, बट दे फील कि अगर उनका वेट गेन हो रहा है या वो किसी वजह से वेट नहीं लूज कर पा रहे, they just tag themselves as PCOD. Also उसके लिए जो रोबस्ट टेस्टिंग चाहिए वो शायद हर पेशेंट नहीं करवाता है. दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ड्रिल कि इतने टेस्ट कौन करवाएगा. आई प्रोबेबली थिंक दैट इट इज पीसीओडी. बट हैविंग कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, अगर आपको और कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, लाइक हेयर फॉल नहीं है, एक्सेसिव एक्ने नहीं है, या फिर ओबेसिटी नहीं है, या फिर जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस कहते हैं जैसे डार्कनिंग ऑफ स्किन और ये सब, सो यू डोंट रियली फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो वो आई थिंक एक एक्सपर्ट से ही राय लेना बेटर होता है बिफोर यू टैग योरसेल्फ. दूसरी बात, लाइक आई सेड, पीपल जस्ट वांट टू पुट द ब्लेम ऑन समथिंग. सो उनको लगता है कि मेरा वेट शायद इसलिए नहीं लूज हो रहा है बिकॉज आई मे हैव पीसीओडी. बट यस, इट्स द लाइफस्टाइल. मोर देन दैट, इट्स द एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जिसको हम बोलते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक दैट वी यूज, इट्स बिकॉज ऑफ द processed food that we have been eating now, it's because of the packaged food that we've been eating now. It definitely has disrupted our everyone is eating hormone. Exactly. So it definitely has disrupted our hormonal balance that we used to have. And you're talking about our ancestors who उनको नहीं था because उनके टाइम पे इतना पैकेज फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं था. They used to eat as natural as possible. गायनेक हमेशा एक और रीजन देते हैं कि अभी की लड़कियां बहुत ही लाइक लेजी हो चुकी हैं अगर पहले की कंपैरिजन किया जाए. Precisely. So with the screen time, blame the mobile, blame social media. Mobile is also like a major factor. You're always sitting in one place trying to scroll through social media, and I think that so teenage, not just that, हमेशा pubertal phase जो है वो हर एक के लिए बहुत life changing होता है. But very commonly now we've even seen that people have precocious puberty. मतलब टाइम से पहले भी अब लड़कियों में आप सुन रहे होंगे कि periods are at the age of 8 or 9 has been a big challenge. So precocious puberty also is because of the lifestyle changes and the environmental and hormonal changes also. Yeah. So exactly, my point is hormonal changes हो इसलिए रहे because other environmental factors भी अब उसमें एक एडेड फैक्टर बन रहे हैं. ओके. बट जब भी किसी गायनेक के पास आप जाते हो पीसीओडी की प्रॉब्लम लेके, लेकिन एक क्वेश्चन वो हमेशा करती है, डू यू हैव थायराइड? अच्छा. हाँ, वेट अगर बढ़ रहा है तो थायराइड चेक कराया. तो थायराइड से लाइक ये भी तो हार्मोनल ही है. बिल्कुल. तो थायराइड के बारे में बताइए कि थायराइड का कैसे, उसमें भी वेट लॉस का भी एक इशू होता है, किसी का वेट बढ़ भी जाता है. तो हर कुछ तो घूम फिर के वेट पे ही आ जाता है एंड सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है हार्मोन से. तो प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट लाइक थायराइड. एक्चुअली सरप्राइजिंगली एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स मेनली बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल और वेट से रिलेटेड, एटलीस्ट द कॉमन वंस दैट वी सी, लीविंग असाइड पिट्यूटरी ट्यूमर इसको है, अगर कोई और प्रॉब्लम है दैट्स अ डिफरेंट. लेकिन आप
vaguely अगर कोई मेरे पास भी आएगा in my door in my cabin and will say that I have obesity, the first thing I'll tell is कि आप ये set of hormone test करवाइए so that we know कि medically कुछ problem नहीं है, it's probably because of the lifestyle. So yes, thyroid भी दो तरह का होता है, एक होता है hypothyroid, एक होता है hyperthyroid. मतलब thyroid की कमी होना और excess thyroid hormones होना. So thyroid mainly has the role to play in metabolism of the body. Okay. So that's why hence it causes weight gain, weight loss. Excess thyroid will always cause weight loss because metabolism बढ़ जाता है हमारा. But it's not only metabolism, but heart पे भी कुछ effect है उसका, skin पे भी है. There are various factors that thyroid controls in a silent manner that people may not very commonly know about. People only know the weight side of it. But बहुत सारे तरीके से thyroid हमारे हर एक organ पे कुछ ना कुछ effect जरूर करता है. But weight being the main issue why they come to the doctor is what makes it the highlight for thyroid, I think. तो थायराइड के सिम्टम्स एक अर्ली एज में कैसे पता चलता है? जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स है, बोलना चाहूँ तो मैं, जिन्हें थायराइड है, और दो ऐसे डिफरेंशिएट भी मैं करूंगी, एक है जिनका वेट बिल्कुल गिर चुका है और एक है जो बढ़ते जा रही है, एंड दे आर लाइक वी हैव थायराइड, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थायराइड. सो थायराइड से अर्ली एज में पता कैसे चलता है? जैसे पीसीओडी का है तो ऑब्वियसली पीरियड साइकिल गड़बड़ होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, एक्नेस आने लगता है, ऐसे भी कुछ इश्यूज होते हैं. बट थायराइड में कैसे पता चलता है? सो थायराइड में भी जब बिगनिंग होता है, इफ वी टॉक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म जिसमें वेट गेन होता है, मतलब जिसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी रहती है और इस वजह से वेट गेन होता है. इफ वी टॉक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म, सो बहुत बार लोग सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे इफ इट वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स तो इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, या फिर फ्लूइड रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब उनको आंखों के नीचे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, या फिर जनरली फेस जो है वो पफी लगने लगेगा. इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. हाँ, सो इंटरनली भी हम देख सकते हैं कि उनकी हार्ट बीट शायद स्लो हो सकती है, मूवमेंट स्लो हो सकते हैं, लेथार्जी बढ़ सकती है, जो कि पहले नहीं थी. है ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स, बट इफ यू पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन बॉक्स देन इट डेफिनेटली डायरेक्ट्स टुवर्ड्स हाइपोथायराइडिज्म. और हाइपरथायराइडिज्म में यही सब का उल्टा होता है, दैट दे फील मोर हंग्री बट दे डू नॉट they don't gain weight after eating. अगर कंपेयर किया जाए दोनों को तो अब थायराइड है तो अच्छा नहीं, ऑब्वियसली कोई भी बीमारी वो अच्छी नहीं, बट ज्यादा कहते हैं ना खतरनाक कौन सा हुआ, या तो वेट like again complications of thyroid are not just about weight or metabolism. Thyroid in fact affects the heart health the most. Okay. क्योंकि हमारा जो कार्डियक हार्ट फंक्शनिंग होता है, हार्ट बीट से लेके हार्ट पंपिंग से लेके हर चीज में थायराइड हैज सम रोल टू प्ले. So that gets the most impacted, I think. Also on mood. मतलब अगर हम severe thyroid के patient से बात करें, या है वो hyper हो या hypo हो, mood gets affected very. मतलब it's very common. So depression है या anxiety है, ये सब बहुत ज्यादा देखने मिलता है. Depression, anxiety भी hormones का ही एक disbalance. मतलब it is of course associated with thyroid imbalance. So वो दोनों चीजें hand in hand रहती है. So it's very difficult to say कि ये इसमें से safer कौन सा है और non-safe कौन सा है. Both if not treated या फिर not diagnosed in time can have its complications. Okay. ऐसे भी कुछ ladies रहते हैं जो उनका weight भी under control है, but फिर भी वो PCOS, PCOD से like होती है. Yes, so in that case generally जब insulin resistance एक part है इस syndrome का जिसकी हम बात करें, generally जब भी insulin resistance जो है वो probably बहुत पहले का ही सिम्टम बन जाता है. सो इनफैक्ट इवन अल्ट्रासाउंड पे हम इतना फ्रैंक सिस्ट नहीं देखते हैं, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट जो है वो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करते हुए वेट गेन होता है. देयर इज ऑलवेज अ ट्रेंड. वी हैव नेवर सीन अ पेशेंट कम टू अस कंप्लेनिंग ऑफ एक्सेसिव फेशियल हेयर या फिर एक्सेसिव डार्कनिंग ऑफ स्किन, इरेगुलर पीरियड्स, हु इज रियली लीन और थिन, अनलेस in that case then we have to look out for other hormonal issues in them. Yeah, talking about facial hairs also. तो ये and acne, लड़कियां बहुत कंप्लेन करती है facial hairs. बिल्कुल कहते हैं ना मेल बियर्ड जैसी कंडीशन आ जाती है. वो आखिर वैसी कंडीशन कैसे आ जाती है? एंड हाँ, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं. Do I have PCOD? No, my periods are regular. I don't have PCOD, but still I'm having facial hairs because of. And someone like complains like I have a like high testosterone level. Yeah. What is this like? ऐसे Yeah, so mostly like I said, PCOD तो सबसे common reason है. Facial hair का in females, if we talk about, still remains about 90% of the females who come with facial hair have a problem of PCOD. But the other ones, it's something called, is again a very vague term that I'd like to use, but it's called testosterone insensitivity to the skin. So what happens is you probably are having excess testosterone and that is why you are having this kind of hair growth. Okay. So ये एक hormonal imbalance, but ये भी हम देखते हैं कि बहुत बार
लाइफस्टाइल चेंजेस या वेट लॉस की वजह से ये रुक जाता है, इफ नॉट रिवर्स, बट ये डेफिनेटली जो ग्रोथ है ये रुक सकती है. सो वी गिव सर्टेन हॉर्मोन्स दैट काइंड ऑफ ब्लॉक द टेस्टोस्टेरॉन, और वी कैन यूज अदर मेथड्स लाइक लेजर, और ये सब हम सजेस्ट करते हैं ताकि उसका हम ग्रोथ जो है वो अगर स्टॉप कर किसी पाए. लेडी की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई है तो क्या वो सही नहीं है बॉडी के हिसाब से? So testosterone levels excessive होने से we have symptoms like hair fall, like acne, like nail pattern, facial hair and all of that. ये सब जो है ये जरूरी नहीं है कि it is mainly because of testosterone. Like I said, it could be a syndrome of other hormonal imbalance also. So it also affects pregnancy. And yes, so PCOD itself, if we talk about, so it's not like the fertility gets affected extremely. PCOD is very much treatable, reversible to an extent if you maintain the lifestyle. ये खत्म होती है बॉडी मतलब पूरी तरीके से कभी? ये definitely ये cyst एक तरह से silent हो जाते हैं, that it will not affect your cycles. But it definitely affects the egg quality जिसको हम बोलते हैं. So every time we try to conceive, you have PCOD, वो egg quality की वजह से शायद आप conception में थोड़ा delay हो सकता है, या फिर मतलब आप मिस हो सकते हैं, अबॉर्शंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एग क्वालिटी. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप कंसीव करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. सो द चांसेस रिड्यूस, बट इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट हैव, you cannot conceive. Talking about the egg quality, एक क्वेश्चन मेरे मन में है हमेशा से, कब तक एग क्वालिटी बिल्कुल सही होती है एक फीमेल की बॉडी में, लाइक वो कंसीव कर सकती है? क्योंकि आजकल एग फ्रीजिंग का भी एक हो गया, लेकिन इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव दीज डेज. सो लाइक एग क्वालिटी एक फीमेल बॉडी में, जैसे लाइक इफ अर्ली 30s कहते हैं कि आप या तो शादी कर लो या फिर टाइम से बच्चे कर लो, लेकिन जिन्हें बाद में करना है, द वुमेन हु आर करियर ओरिएंटेड, वो नहीं सोचती इस बारे में, बट उन्हें आगे जाके प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, तो वो एग फ्रीजिंग के बारे में सोचती है, बट उस समय तक उनकी एग की क्वालिटी गिर गई होती है. तो व्हाट इज दिस? Yeah, so like I said, जब हम puberty हमारा cycle start होता है, so starting from there when you are actually every decade of life, there is some percentage of fall in the count of egg. Of course, as you age and you go towards menopause, आपकी egg counts कम हो रहे हैं ना. That is how you achieve menopause. Every decade में ये percentage wise कम होता है. Now after 30s or 35 से 40, ये 50% कम हो जाता है. So the amount of eggs left with you is only 50%. Out of that, probably the good eggs that, or maybe the probability of conception, of course, drastically reduces to 50%. That is what makes it difficult for people to conceive either in their late 30s or in their 40s. इनके टेस्ट्स होते हैं कि पता चल सके कि हाँ, we have various tests that tell us now कि हमारा ovarian reserve कितना है, which is called, there is a hormone called AMH. उससे हम पता कर सकते हैं हमारा ovarian reserve कितना है, and depending on that we can मतलब guide the patients. Alright. So अब अगर हार्मोनल इश्यूज पे हैं तो फिर और भी वैसे बहुत सारे मेल में क्या प्रॉब्लम्स आती है? मेल के भी कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते ही होंगे. फीमेल के तो एक्सेस इश्यूज है बिकॉज ऑफ पीसीओडी इज द मेन रीजन. मेल जो डायबिटिक हो जाते हैं उन्हें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आती है, एंड जो कहते हैं ओबेसिटी के थ्रू मतलब पहुंच जाते हैं, उस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं तो वो वेट लॉस नहीं कर पाते. लेकिन अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज मेल बॉडी में और क्या चेंजेस आते हैं? So because of diabetes or because of thyroid, there are similar changes that happen in males also. To an extent, even their fertility can get affected. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ females infertile होंगी या PCOD जिसको है बस ओबेसिटी से फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, and it's very well proven now. It's very well proven now. There are various studies and researches that are going on, and in fact, as a matter of fact, recently आपने consensus देखा होगा कि इंडिया में fertility rate अब कम हो रहा है. That, and the main reason for that is our poor lifestyle. Okay, nothing else. So definitely we have various changes that are happening for male and female both. Males have a different things to fight for. Males generally have, ऐसा नहीं है कि thyroid males में नहीं होता है, but it's the percentage of having that disease more in females. Okay. Versus obesity भी अब दोनों में ही इतना common है, males and females both. So because of obesity or because of diabetes for long time, depression है जिसकी वजह से शायद लोगों में कई बार males में especially we see erectile dysfunction also. Okay. Which can be again due to obesity, it can be due to uncontrolled diabetes. So ऐसा नहीं है कि males are any less at suffering, but they're equivalent to females. मेरे जो बच्चे होते हैं जनरली ओबेस लड़के दिखते हैं बचपन में, वो ज्यादा उनकी होती है, एंड टाइम के साथ अगर वो नॉर्मल नहीं होती है तो फिर वो कंटिन्यूएशन में भी चली जाती है, तो उन्हें भी आगे दिक्कत होती है. Yes. ओके, बिकॉज जनरली टीनेज लड़के रहते हैं जिनको डायबिटिक
डायबिटीज के इश्यूज होते हैं, सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, बट लड़कियों के साथ और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे पीसीओडी तो खैर इतना ही कॉमन हो चुका है, राइट. या सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट if you're talking about like hormones, so is it similar with the transgender also? but transgender के साथ क्या conditions हैं उन, मतलब अगर चलिए मैं एक सवाल पूछती हूँ, लोगों को भी लगता है मिथ है ये, हॉर्मोन्स की अगर बात करी जाए तो आई एम अ गर्ल, इफ आई स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल, तो ये क्या नेचुरल है या फिर बस कहने की बात है, नहीं नहीं इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस, मतलब लाइक I think we should not mix these two terms of Okay, being okay. a transgender and having a choice to like the same gender. They're two different Right. entities, and I think ये बिल्कुल भी नहीं mix होना चाहिए, because transgenders have medically they have some problems, you know, which are probably at birth. और जो बर्थ के साथ उनके जो क्रोमोसोम्स मिसमैच हो सकते हैं, देयर कैन बी जेनेटिक इश्यूज, देयर कैन बी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स दैट जहाँ से हार्मोन्स बनते हैं, सो दे हैव अ डिफरेंट चैलेंज टू फेस ऑल टुगेदर. फॉर देम वी हैव, of course, we have various treatments when they choose to when they choose or they want to be of one particular gender, say male or female. But what your question was about, choosing to like what it is has not really been associated or linked to any of the hormone problems that we see. So it's all about psychology. It's definitely psychological. And what about the trans females जो अपने आप को convert करते हैं? Yeah. जैसे obviously बात है, there are so many people, and the male who got transformed into female. Right. उसमें उनमें भी hormonal changes आते हैं. Yes. So that's what I'm saying, that they're not born, so they're born with a defect, you know. And I would not like to call it defect, but they're born with some deficiency of hormones in them, and hence they cannot typically present as a complete male or a complete female. There are some deficiencies in the hormone that lead to excess female hormones, or say excess male hormones in both type of genders. But generally होता ये कि when they choose to move from one gender, or they choose to be in one particular gender, we prep them up in a way that we trying to bring down the other hormones, and then we make them fit for the surgeries. That's how they can very smoothly undergo the process. Even after the surgery, they very smoothly can stay in that after the surgery. After the surgery, like a male transformed into a female, तो एक मेल हॉर्मोन्स जो पहले एक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फिर फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, या पता नहीं मैं इसको सही बता पा रही हूँ नहीं, फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एज अ फीमेल वो हो गई आफ्टर द सेक्स चेंज ऑपरेशन एवरीथिंग, तो मतलब लाइक अंदर जो उनके फीमेल, लाइक एक नेचुरल एक फीमेल में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस प्रेजेंट होते हैं, वो सब तो उसमें नहीं होते हैं, तो क्या वो अलग से ऐड किए जाते हैं, फिर अलग से हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं? पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज कि लाइक आप ऊपर से जो चेंज करा, फिर अंदर से क्या है, वो तो पहले जैसा ही होना चाहिए ना, वही वाली बात है. कंसेप्शन में नॉट, मतलब वो एक नहीं हो सकता है शायद, बट लाइक आई सेड, इवन बिफोर द सर्जरी, so suppose a male wants to convert into a female, or maybe a transgender wants to convert into a female, we prep them up in a way कि हम उनको वो hormones देते हैं. So we give them hormones that particularly you guys stay them actually inject them. Yeah, so they're in the injectable forms or tablet forms, but we give them hormones for some time, and even after the surgery they have to keep taking it as a maintenance. Okay, so after effects भी, मतलब इसके side effects भी आते हैं क्या? कोई भी हार्मोनल या कोई भी थेरेपी के देयर आर सम साइड इफेक्ट्स, बट मे बी लाइक ऐसा भी होता है कि ये सर्जरी से सबके बाद जो भी आप हार्मोन इंजेक्ट करते हो, या फिर तो उनके बाद उन्होंने ऐसा, मतलब ऐसे कोई पेशेंट्स आपके रहे हैं जिन्होंने आफ्टर लाइक उसके साइड इफेक्ट्स बताए हो कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत हो रही है ऐसे वैसे? नॉट रियली, बिकॉज़ एवरीवन शोज लाइक देयर हैप्पी फेसेस ना, बट लाइक वैसे पता नहीं चल पाता. Not really. I don't think so that it is that it is very influencing. एंड ऑफ कोर्स उसका आपको डेली फॉलोअप, मतलब रेगुलर रूटीन फॉलोअप तो करना ही पड़ता है with either the surgeon who has done the surgery or with an endocrinologist. Okay, let it be. Okay, then we'll talk about like diabetes and all. So एक healthy lifestyle maintain करने के लिए अभी के यूथ को करना क्या चाहिए? Because everyone is like नहीं मतलब we will do exercise, but ऐसे भी लोग होते हैं जो workouts कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, but they are still suffering from these kind of problems. Actually problem ये है आज के यूथ में, that if you tell them to do something, they will not do it. Unless they want to do it, they do not get into anything. So ये उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि lifestyle changes या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से वो बच सकते हैं just by doing a regular exercise. This, once they understand it as a fact and they are aware of it,
आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी वहीं रुक जाएंगी, रादर देन फॉलोइंग अ ट्रेंड कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेता हूँ या फिर मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स खा के बॉडी बना लेता हूँ एक्सेट्रा. मोर देन दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो सकती है. अगर वो ये समझ जाएंगे so they naturally will have incorporate that in their daily routine. मतलब वो ऐसी कोई फैड या फैंसी चीज नहीं करेंगे जो कि सिर्फ शॉर्ट लिव्ड रहेगी 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, जिम मेंबरशिप ले लेंगे और उसमें जाएंगे. रेगुलरिटी रहे. So consistency is what is very important. Whatever you do with your lifestyle, I think be it diet in the form of diet या exercise या आपका रूटीन सेट करना है, ज्यादा मोबिलिटी है, बहुत ज्यादा सीटिंग नहीं है, एडिक्शंस कम से कम है, ये सब चीजें अगर आप डेली एज उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ही आई थिंक यू कैन सेव फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसीज. टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, जो भी मेल जो जिम फ्रीक्स हैं वो भी सप्लीमेंट्स कुछ बहुत ही अलग अलग तरीके से लेते हैं. बिल्कुल, जैसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड बिल्कुल. व्हाट लाइक स्टेरॉइड्स स्पेशली. यस यस, हार्मोन्स पे उनका भी तो असर पड़ता ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो हमने देखा हुआ है कि इनफैक्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जब भी देते हैं वेट लॉस के लिए और मसल मास, बहुत कॉमनली ऑफ द काउंटर मिल जाता है आपको. आपके जिम वाला ही आपको बोल देगा कि सर ये ले लीजिए आप, यू विल हैव good muscles with this. But with that, we have seen so much of problems that later, even later in stages, males have come to us with infertility, with erectile dysfunction, with depression. So all of that, उनको वो consequences नहीं पता है. And I think वो consequences बताने वाला कोई expert नहीं होता है उनके पास. Lack of knowledge obviously. It is, yeah. And it is, जिसको हम भेड़ चाल बोलते हैं कि हाँ वो, if he's doing it, I should do it too. The people are like, there are 4 other he's just people bulking, exactly. and then cutting. वही वाली बात है. Social media influencers वो और ज्यादा आपको बताते रहते हैं उसके बारे में. They are not expert, but yeah, they like telling it about more about it, and और ज्यादा लोग उसको follow करने लगते हैं. So I think वो एक awareness हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. That workout supplements may not be healthy always, and mostly loaded with protein powder is protein powder healthy according to you? Unless you are you have a problem where you need external protein source, where you're not able to take enough proteins through the diet. Only then I think protein powder or protein supplements play a role. If you're eating well, your diet is proper, there is no other problem where you are asked to not eat enough protein या जो भी है. मतलब अगर वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो protein supplements are not needed. We have enough natural sources of protein, even for vegetarians, I think. जिस वे में अगर प्रोटीन जिस वे में मेल को इफेक्ट करती है, जिस मेल बॉडी को इफेक्ट करता है, सेम प्रोसेस में वो फीमेल के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स आती है, जो भी मतलब लाइक ऐसे सप्लीमेंट्स लेती हैं जिम में. जिम फ्रीक लेडीज, यू नो, उनकी भी बात कर रही हूँ. Yes. Even so, weight changes can itself cause disruption of आपके जो regular menstrual cycle है उसमें. Weight definitely affects your the way the hormones, you know, fluctuate, और जिसको हम circadian rhythm बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. वो आपके स्लीप से भी अफेक्ट होता है, आपके डाइट से भी अफेक्ट होता है. Hence the hormonal fluctuations also happen. Okay. The last question I will ask you, please suggest the audience, especially the girls who are suffering from PCOD, diabetes, वो अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकती हैं, जिससे जिनको हो गया है वो तो खैर इलाज में होंगी, बट ना हो उनके लिए आप कुछ एडवाइस करिए. लाइक आई सेड, ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हमें किस स्टेज पे अवेयर होना चाहिए और कब हमें शुरुआत करनी चाहिए. बिकॉज बहुत लोगों को लेट स्टेज पे जाके पता चलता है कि अब टाइम निकल चुका है और अब वो शायद डर के मारे या जो भी हेजिटेंसी है उसकी वजह से वो नहीं करते हैं स्टार्ट. सो आई थिंक फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट when we have to start is very important. और ऐसा नहीं है कि अगेन हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोगों से नहीं ज़्यादा वो लेना चाहिए. we need to understand that weight आगे चल के एक प्रॉब्लम हो सकता है. हम जो भी रोज़ खाते हैं, it has to be less, there has to be no processing in it. So जितना हम फास्ट फूड मना करा है. बिल्कुल. फास्ट फूड जो भी पैकेज फूड है जिसमें हम प्लास्टिक सबसे ज्यादा देखते हैं, वो सारी डायबिटीज के शुगर से ही होता है या फिर ये दीज आर लाइक मेन रीजंस? इनफैक्ट शुगर तो सबसे लास्ट है टू बी ब्लेम्ड, टू बी ऑनेस्ट. आप मीठा खाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आप मैदा खाएंगे, आप बर्गर्स खाएंगे, आप पिज्जा खाएंगे, आपको डेफिनेटली डायबिटीज होगा. ओके, इट्स लाइक दैट. आप डोनट्स खाएंगे, सो समथिंग व्हिच इज हाईली प्रोसेस्ड विद शुगर इज अ बिग नो. सो टीनेजर्स के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी वो सुपरमार्केट जाते हैं, वो ऑफ द काउंटर जो भी चिप्स का पैकेट या केक उठाते हैं या पेस्ट्रीज उठाते हैं, उससे पहले एज पेरेंट्स या फिर एज एल्डर्स whoever is accompanying them should tell them that this is okay for you to have maybe once in a while, but as a routine it should definitely be out of our homes and out of our daily routine. And the exercise is regular.
exercise at least it's very difficult. Lazy India में people, ये problem है. what You about know, lazy people who don't want to yeah, exercise? so it's actually surprisingly only in India that Indians में I think मुश्किल से 30% Indians होंगे जो regular exercise करते हैं या फिर कोई athletic activity में involved. इतना कम परसेंटेज में आपको ये इंडियंस को समझाना कि क्यों जरूरी है एक्सरसाइज. इट्स नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस और वेट मेंटेन. इट काइंड ऑफ एक्चुअली आपके जो हार्मोन्स होते हैं डेली सिक्रीट, उसमें भी एक्सरसाइज बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है. जैसे ग्रोथ हार्मोन है जो कि हमारे ओबेसिटी को या स्पेशली ग्रोइंग एज में जो ट्रिगर कर. ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बढ़ाने का तरीका एक्सरसाइज है, एंड मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस. So it's not just exercise for having a good weight or good body, but it's also to maintain that rhythm. So it's you should never target exercise कि नहीं मुझे एक particular shape में आना है या फिर मुझे muscles बनाने हैं. Do it for the health. You should you should do it as a routine, like how you choose to eat a fruit every day or maybe salad every day. Exercise is only going to give you that kind of benefit. Okay, thank you so much, doctor, for giving us the time. I guess this is actually audience justice. बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, especially the young girls. Okay, thank you so much. Thank you. हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें.